So in the last session, we discussed about the MapReduce. So MapReduce is not only used for indexing, but as you know that this is an important architecture. So as we discussed in the last lecture that even Facebook have used it. So how the Facebook use it? Because whenever you create a profile, so for each user, there is a mapping phase. So whenever you create your profile or whenever you post anything on the any social media site like Facebook, so there is a mapping phase which map whatever you are doing to set of indexes, and then there is a reducer. So mapping is done by the parsers. So these machines are different, so which are working in parallel for all the users. Then reducers are the inverters. So whatever you are doing, so they try to put into a format so that easily we can query the things. Suppose you are looking for some item in the Flipkart or Amazon. So you give some keyword. So let's say you are looking for a one particular item ABC, and you give these keyword ABC to the Amazon site or the Flipkart site, so or any e-commerce site. So what would happen? So whatever your query, so these parser would map your query into a format so that it can be used by these inverters. So now inverters you put into index, and finally, if you have seen in any e-commerce site, so there is a list of items which are shown to you, which are purchased by the customers who have also shown the interest in the same thing. तो ये आपने देखा होगा कि जैसे आप आइटम खरीदते हो और नीचे आ जाता है कि द कस्टमर हु हैव बॉट दिस आइटम आल्सो परचेज दिस आइटम आल्सो. So all of this is done in real time using this particular architecture. MapReduce architecture इसमें काफी हेल्प करता है. So जो आपकी queries हैं, जब भी आप query देते हो, these are a separate set of machines which are handling it and put it into index, and then there are separate set of machines which are actually using that index and giving the output. So इस तरह से even in the those websites also this particular architecture is being used. So we till now we were assuming that the collections are static, but we know that on the web everything is dynamic. So documents keep on coming over time and need to be inserted. So as we are taking example of social media sites and e-commerce sites, you know that there is so much of variation in the data. Every second there are so much of new items which are coming up. So documents, even on the web, documents are deleted and modified. So no index can be static. So index need to be dynamic. So these machines need to be working uh, every time. So they are working every time. That's why Google has more than 4.1 million processors. So that's why they are using these because these indexes are dynamic. And any dictionary posting that for a particular term, any list of items that we are saying that okay, this suggests in these documents, so that need to be modified. So the posting update for terms already which are in dictionary, so terms which are already there, we have to update their posting because documents are modified, and new terms are keep on generating. So every now and then new terms are coming. Sometimes people believe that okay, whatever terminology which is there in English, let's say Oxford has defined 7 lakh words, so that is the final. But still every year in all the languages, even in the English, more than 2000 words are added into English every year. And if we keep track of all the languages, so more than 1 lakh words which are added into the dictionary every year. So these are apart from the nouns or the named entities which we keep on generating. So we keep on coming up with the different nouns and with new terms. So like last month or there are new papers which are coming like entanglement of deep learning. Entanglement of deep learning. So these terms keep on coming in the research also.
you will see that these terms keep on coming. So that's why new terms are also coming, and all terms, all postings, so they are also being updated. So that's why indexing is something which is always dynamic and always keep on increasing. And as we discussed that, so Google need to keep on increasing their data centers. So as you are aware that they are also coming out up with a new data center in India as well. So they keep on updating it. Now, how to maintain these indexes? One thing is, let's have a one big main index. So this comes to our mind कि शायद गूगल के पास एक बहुत बड़ा इंडेक्स होगा और उसी में सारा डाटा, सारी इंडेक्सिंग होती होगी. So new documents first go into small auxiliary index. Suppose चंडीगढ़ में कोई इवेंट होता है. Let's say चंडीगढ़ में there is some event happen, any rally happen in Chandigarh, and this news is, let's say, being generated by जो चंडीगढ़ बेस्ड न्यूज़पेपर, लेट्स से ट्रिब्यून में ये न्यूज़ आ जाती है, ट्रिब्यून में ऑनलाइन में ये न्यूज़ आती है. अब इस की इंडेक्सिंग कैसे हो गई? सो दिस इज लाइक चंडीगढ़ बेस्ड न्यूज़, and it is also in a local newspaper when it comes. So now whether it has to be updated into main index. So main index को तो सर्च कौन कर रहा है? Maybe someone in California is also searching it. So they might not be interested in the something which is happening in the Chandigarh. They may be interested or may not be interested. So first of all, we need to update a small auxiliary index. So immediately एक small auxiliary index में ये result जाने चाहिए. And maybe if this news is getting bigger and bigger, if more and more people are coming up, eventually this should go to the main index. So पहले सिर्फ small auxiliary index में जाना चाहिए और उसके बाद main index में जाना चाहिए. और suppose as in a Chandigarh, I search for this. मैं कुछ सर्च करता हूँ और मैं इसी न्यूज़ के ऊपर सर्च करता हूँ. I give some keyword. तो what should happen? First it should search in this small auxiliary index में सर्च करेगा. अगर वहीं पर मुझे रिजल्ट मिल जाते हैं तो वहीं से रिटर्न हो जाएंगे. And similarly, let's say person in the California, let's say my friend actually lives in a California but belongs to Chandigarh. वो चंडीगढ़ का है but कैलिफोर्निया में रहता है. He is also interested in this news. वो भी सेम कीवर्ड देता है. So what would happen? इसके केस में कैलिफोर्निया का ऑक्सिलरी इंडेक्स में सर्च होगा. तो कैलिफोर्निया के ऑक्सिलरी इंडेक्स में तो ये न्यूज़ मिलेगी नहीं, बिकॉज इट इज नॉट देयर इन द ऑक्सिलरी इंडेक्स. सो व्हाट वुड हैपन, जो भी कीवर्ड दिए सो कैलिफोर्निया के ऑक्सिलरी इंडेक्स में न्यूज़ नहीं मिलेगी, बट ऑब्वियसली चंडीगढ़ के ऑक्सिलरी इंडेक्स में ये न्यूज़ इंडेक्स्ड है. So when this is not, we are not able to find into the California auxiliary index, only then it goes to the main index. तभी वो main index में जाके search होगा, otherwise it won't search in the main index. So in my case, when I am searching in the Chandigarh, it just search in the small auxiliary index. So whenever we are updating these type of indexes, so we keep on updating the main index as well. So there are many things which are deleted, updated, modified. So there are many things invalidated bit vector for deleted documents. Suppose Tribune ने news publish की, as you might have seen कई बार गलत news भी publish हो जाती है and then they deleted it. So आपने कई बार देखा होगा आजकल काफी fake news होती हैं और अच्छे newspaper भी publish कर देते हैं और immediately when they realize they delete it. So suppose कोई document हमने पब्लिश किया और फिर डिलीट कर दिया. लेट्स से कोई पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे नोटिस अपडेट किया एंड देन वी डिलीटेड इट. सो जैसे डिलीट किया वो कितने टाइम में इंडेक्स में भी डिलीट हो जाएगा. सो इट मे कीप ऑन कमिंग इन द इंडेक्स फॉर सम टाइम बट देन इट मस्ट गेट डिलीटेड इन द इंडेक्स एज वेल. So we have to filter documents output on search results by this invalidation bit vector. हमें हर इंडेक्स के साथ एक बिट वेक्टर रखना पड़ेगा टू टेल कि ये डिलीट हो चुका हुआ है. ऐसा हो सकता है कि ऑक्सिलरी इंडेक्स में कोई आइटम है, अभी मेन इंडेक्स में नहीं गई और वो डिलीट हो गई, तो वहीं पर ही हमने उसको अपडेट कर दिया.
and there is some another item which is also in the auxiliary index but also in the main index, दोनों जगह पे पड़ी हुई है, और अब auxiliary index में डिलीट हो गई है बट मेन इंडेक्स में भी डिलीट नहीं हुई है. सो इट माइट बी पॉसिबल कि उसका रिजल्ट बाकी लोगों को दिख रहा है बट नॉट इन द auxiliary index, चंडीगढ़ में नहीं दिख रहा. So these indexes are not updated immediately, these are updated periodically. ये हमेशा periodically अपडेट होते हैं, they are not updated immediately. So ये क्लियर है सबको? Yes, sir. So let me ask a question. Usually whenever I design a schema, जैसे आप लोगों की जब एडमिशंस भी हुई होंगी, इवन इन द बीटेक, जब आपने ऑनलाइन एडमिशंस की होंगी, so normally in my schema जब भी मैं I have conducted admission many times, so मेरे स्कीमा में या ऑपरेशंस में डिलीशन ऑपरेशन कभी नहीं होता. So we never use a deletion operation. So what is the reason of कि डिलीशन कभी नहीं होनी चाहिए डाटा में? आप लोगों ने एसक्यूएल में डिलीट ऑपरेशन तो देखा होगा ना, देखा ना, डिलीट ऑपरेशन होता है सीक्वल में, कोई भी रो डिलीट कर सकते हैं हम. देखा होगा आपने डिलीट ऑपरेशन? Yes, sir. Yes, sir. देखा होगा, ठीक. अपडेट भी आपने देखा होगा, अपडेट कर सकते हैं, ठीक है. सो अब प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकली लेट्स से मैं एडमिशंस करा रहा हूँ, अब काउंसलिंग 1 हुई, काउंसलिंग 1 में लेट्स से यूआईटी में समवन गेट इलेक्ट्रिकल ब्रांच. अब सेम स्टूडेंट काउंसलिंग 2 में लेट्स से गॉट आईटी ब्रांच. सो वी नेवर, ऐसा नहीं होता है कि हम उसी रो को अपडेट कर देते हैं. अगर मैं उसी रो को अपडेट कर दूं या डिलीट करके नई रो ऐड कर दूं, सो आई विल लूज द डाटा. मुझे फिर अगर कोई क्वेरी करता है कि भी कितने स्टूडेंट्स ट्रिपल ई से आईटी में गए काउंसलिंग 1 से 2, आई कैन नॉट आंसर बिकॉज आई हैव डिलीटेड इट या अपडेटेड इट. सो नॉर्मली जब भी हम डाटा एक बार एंटर हो जाता है तो प्रैक्टिकली कभी भी डिलीट नहीं होता, ना कभी अपडेट होता है, वो रो एज इट इज रहती है, एक नई रो इंसर्ट हो जाती है. ओनली थिंग इज वी यूज द फ्लैग्स. फ्लैग यूज करते हैं कि क्या चीज अब वैलिड है, भी काउंसलिंग 1 में क्या वैलिड है और काउंसलिंग 2 में का फ्लैग होगा कि ये बताएगा कि ये काउंसलिंग 2 का फ्लैग है और ये वैलिड है या नहीं है, 1 या 0, कि वेदर इट इज वैलिड और नॉट. सो जैसे जैसे डाटा इंसर्ट होता है उसके साथ फ्लैग इंसर्ट होते हैं. फ्लैग उसकी रेलिवेंस बताता है कि वो इस वक्त वैलिड है या नहीं है. सो वो जो बिट वेक्टर होता है विच टेल्स कि कब कौन सा डाटा वैलिड है, वो बिट वेक्टर यूज करते हैं. वी नेवर डिलीट एनीथिंग इन द डाटा. गूगल में आपका डाटा हमेशा रहता है, चाहे आप ईमेल में अगर आप देखो आप डिलीट कर देते हो ईमेल्स, सो आपको लगता है कि आपकी स्पेस सेव हो रही, बट गूगल आपका डाटा हमेशा रखेगा. व्हाट्सएप पे आप कुछ भी डिलीट कर दो, सो यू माइट हैव सीन कि अभी पीछे even the media persons they got the WhatsApp detail of people, लोगों का 2018 का 2-3 साल पुराना WhatsApp का डिटेल डाटा भी उन्होंने रिट्रीव कर लिया. सो इट मींस दैट डाटा इज ऑलवेज देयर. डाटा कभी भी डिलीट नहीं होता. प्रैक्टिकली जब भी हम कोई सिस्टम डिजाइन करते हैं वी मेक श्योर दैट कि डाटा इज नेवर डिलीटेड, एंड अपडेट जब भी होगा तो उसका एक नया वर्जन क्रिएट होगा. नया वर्जन में वो डाटा नया दिखेगा, पुराना डाटा एज इट इज रहेगा. सपोज अगर आपके पास 2 GB ऑफ डाटा है, सो जब भी अपडेट होगा ये पुराना 2 GB हम आर्काइव रखेंगे विद डेट. ये अपने डाटा वेयर हाउसिंग में भी पड़ा होगा और नया 2 GB ऑफ डाटा जनरेट हो जाएगा. सो इन रियल लाइफ डाटा इज नेवर डिलीटेड. इवन अगर आपने आज से 20 साल पुराना कोई भी वेबसाइट देखनी है, इवन दैट इज अवेलेबल archive.org में. अगर आपने आज से 20 साल पहले पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट कैसे दिखती थी, वो भी डाटा अवेलेबल है. सो इवन दो समवन विल से कि उसकी क्या रेलेवेंस है, 20 साल पहले क्या क्या था, उसको क्यों सेव करके रखा हुआ है, बिकॉज
there is no need to delete data because it may be able to we may be able to use it somewhere down the line. So अगर delete कर दिया तो फिर उसको use नहीं कर पाएंगे. So that's why deletions in the data never happens. Only उसके साथ bit vector के साथ हम मेंशन करते हैं कि क्या चीज अब वैलिड है और क्या चीज अब वैलिड नहीं है. Only that thing is mentioned. सो इन रियल लाइफ नथिंग इज रिलेटेड अभी तक. जब से इंटरनेट आया, जब से वेब आया, जब से जितनी वेबसाइट्स बनी है, जो भी डाटा बना है, इट हैज नॉट बीन डिलीटेड. किसी भी वेब सर्वर में कोई भी डाटा कभी भी डिलीट नहीं हुआ है. और जितनी सोशल मीडिया साइट्स हैं, जब से व्हाट्सएप आया है, जब से फेसबुक आया, कोई डाटा डिलीट नहीं हुआ है. एवरीथिंग इज देयर. ओनली थिंग इज व्हाट यू नीड टू लुक इट एट. आपके अकाउंट में आपको क्या दिखेगा, उसी को मेंटेन करना है. Rest everything is there. अब मेन और ऑक्सिलरी इंडेक्स की तो हमने कहा कि भी हम ऐसे दो तरह के इंडेक्स बनाएंगे, बट अब उनकी पीरियोडिसिटी डिसाइड करनी पड़ेगी भी कितनी बार ऑक्सिलरी इंडेक्स को मेन इंडेक्स में लेके आना है. सो और जब भी हम मर्जिंग करेंगे ऑक्सिलरी इंडेक्स की मेन में, तो देयर आर चांसेस कि उस टाइम पे परफॉर्मेंस उसकी इतनी अच्छी ना रहे. So merging of auxiliary index into main index is efficient if we keep a separate file for each posting list. Otherwise merging जब भी करेंगे तो obviously थोड़े टाइम के लिए तो main index भी affect होगा ही होगा. main index में थोड़े टाइम के लिए तो we need to look upon कि भी कोई changes आएंगे. और उस टाइम जब हम merging कर रहे हैं, उस टाइम somebody start searching, तो उसको वो proper results नहीं दिखेंगे. सो मर्जिंग इज सेम है, सिंपल अपेंडिंग हो रही है, बट हमें काफ़ी फाइल्स चाहिए और नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम इन सब के लिए इनएफिशिएंट है. दैट्स व्हाई स्पेशल ओएस जिनको हम बिग डाटा सिस्टम्स कहते हैं, जहाँ जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, भी हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम हम यूज करेंगे. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर यूज्ड बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉट पॉसिबल इन ए नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम्स. So we have to use a scheme in between कि split कैसे करना है, large posting list को collect कैसे करना है, कैसे उसकी sorting करनी है. So these are the things actually which defines कि search engine कैसे maintain होंगे. Search engine कैसे maintain हो रहा है, ये यहीं पर define होता है. जैसे कोई news आती है, immediately you search on the Google and Bing. बिंग जैसे माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, या तो कोई और भी सर्च इंजन है, आप उन पे सर्च करते हो, तो यू कैन सी दैट हाउ एफिशिएंटली दे अपेंड दीज थिंग्स. कितना एफिशिएंटली वो इन चीजों को अपेंड करते हैं, कितना एफिशिएंटली वो इन चीजों को लेके आते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट only one thing of merging, that is called the logarithmic merge, even though there are multiple way of doing it. अब इस को समझने के लिए करना है, हम क्या करेंगे. सो अभी हम ट्वाइस वाला वर्जन करेंगे, इवन दो इट कैन बी थ्राइस और इवन मोर देन थ्राइस से भी ज्यादा साइज हो सकता है, बट लेट्स से टू अंडरस्टैंड वी अज्यूम कि ट्वाइस. सो अब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे. सबसे अंदर का इंडेक्स को हम जेड नोट कहेंगे. इसमें एंट्रीज आनी स्टार्ट हो जाएंगी. जैसे ये भर जाएगा, जैसे ये इंडेक्स भर जाएगा, इसको हम कॉपी कर देंगे हार्ड डिस्क पे. यानी कि जेड नोट तो मेमोरी में है, जेड नोट तो आपका मेन मेमोरी में है. जैसे ये भर जाएगा, लेट्स से इसका साइज 2 MB है, आई एम जस्ट टेकिंग ए वेरी स्मॉल एग्जांपल. जैसे ही भर जाएगा, हम आई नोट एक और इंडेक्स जो हार्ड डिस्क पे पड़ा हुआ है, सो दिस इज ऑन हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क पे है, तो इसमें डाल देंगे. अब आई नोट का साइज कितना है, अगर हम ट्वाइस वाला लेके चलेंगे तो आई नोट का साइज 4 MB है, तो ये जेड नोट आई नोट में चला जाएगा. सो कितने जेड नोट आई नोट में जा सकते हैं, 2 बार जेड नोट जब भर जाएगा, क्योंकि 2 MB आई नोट में चल जाएंगे. सो इवेंचुअली आई नोट पे भर जाएगा, और जैसे आई नोट भर जाएगा फिर हमें एक और इंडेक्स वो करना पड़ेगा, यानी कि बिल्कुल अंदर जेड नोट होगा. जेड नोट जैसे ही भरेगा तो इसके बाहर वाला इंडेक्स जो है दैट इज वी कॉल आई नोट, बट इसको जब मेन मेमोरी में लेके आएंगे इसका नाम Z1 रखेंगे. और जब Z1 भर जाएगा देन इसको हम I1 में लेके जाएंगे. ठीक है, तो हम एक एक करके इंडेक्स ऐसे बनाने शुरू करेंगे. सो पहले हमारा सिंपल जेड नोट आएगा,
जेट नोट जैसे ही जेट नोट का साइज 2 MB है, तो पहली बार कॉपी किया आई नोट में, फिर दूसरी बार कॉपी किया आई नोट में, तो आई नोट जैसे ही भर जाएगा फिर वो I1 में कॉपी होगा। ठीक है, तो अंडरस्टैंड करने के लिए आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड टू अंडरस्टैंड दिस। तो आपका सबसे अंदर वाला जो इंडेक्स है दैट इज जेड नोट। जो भी चीज मेमोरी में है वो सेम चीज ही, उसको हम जेड से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। जो हार्ड डिस्क में है उसको हम आई से डेजिग्नेट कर रहे हैं। सो मेमोरी में जब स्टार्ट होगा, जब एल्गोरिथम स्टार्ट होगा तो वो जेड 0 है, जेड नोट है। सो ये 2 MB का साइज है। जैसे ये 2 MB भर गया, जब इसमें एंट्रीज 2 MB तक की भर जाएंगी, तब क्या होगा, हम उसको आई नोट में डाल देंगे। यानी कि पहली आइट्रेशन, फर्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा, फर्स्ट आइट्रेशन, फर्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा, जेड नोट जैसे ही भर जाएगा तो आई नोट में 2 MB की एंट्री आ जाएगी। फिर वो जेड नोट खाली हो जाएगा क्योंकि हमने जेड नोट में जो कुछ भी था हमने आई नोट में डाल दिए। आई नोट को मेमोरी में क्या कहते हैं, आई नोट को मेमोरी में Z1 कहते हैं। इसी आई नोट को हार्ड डिस्क में, इस स्पेस को, जो ये 4 MB की स्पेस है, हार्ड डिस्क में तो इसको आई नोट कहते हैं, बट मेमोरी में इसी चीज को जब हम कॉपी करके ले आएंगे इसको Z1 कहते हैं। तो ये आपको ये अंडरस्टैंड करना है, जो चीज हार्ड डिस्क में आई नोट है वही मेन मेमोरी में Z1 है। अब जब जेड नोट सेकेंड आइट्रेशन होगी, दूसरी बार जेड नोट जब भर जाएगा, तब हम फिर उसको कॉपी कर देंगे हार्ड डिस्क में। तो अब हार्ड डिस्क में आई नोट भी फिल हो गया, आई नोट की स्पेस थी 4 MB, आई नोट भी फिल हो गया। अब इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसी को हम Z1 कहते हैं। यानी कि आई नोट फिल हो गया, इसका मतलब Z1 भी फिल हो गए। और Z1 फिल होने का मतलब क्या है कि हम I1 में डालना शुरू कर देंगे, और I1 का साइज कितना है, 8 MB। तो ये 8 MB ये Z1 का इसमें चला जाएगा, और फिर से सारी आइट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आई नोट और जिसका नाम मेमोरी में Z1 है, यानी कि Z1 एंड आई नोट आर द सेम थिंग। और Z1 जैसे ही हमने I1 में डाला तो Z1 खाली हो गया, यानी कि आई नोट खाली हो गया। आई नोट खाली होने का मतलब कि जेड नोट से दोबारा से एंट्री डाल सकते हैं, वही साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। ये क्लियर है सबको, ये पार्ट क्लियर है सबको? तो इसमें आपको समझने की क्या जरूरत है कि इसमें कंफ्यूजन कहां पे आएगी, आई नोट एंड Z1 आर द सेम थिंग। तुम्हारे पास मेन मेमोरी में सिर्फ 2 MB का ये स्पेस है, जैसे ही भर जाती है हम धीरे धीरे हार्ड डिस्क में डालना शुरू कर देते हैं। और हार्ड डिस्क में जैसे ये 4 MB जिसको हम मेन मेमोरी में लेके आते हैं, जिसका नाम Z1 रखते हैं, और जैसे ये 4 MB हो जाता है फिर हम I1 में डाल देते हैं। और जैसे I1 भी भर जाएगा, सो I1 मेन मेमोरी में क्या कहलाएगा, Z2। और इसी तरह से I2 का साइज कितना हो जाएगा, इससे डबल, 16 MB। सो हेयर आई एम टेकिंग दिस एज ए कि लॉगरिथमिक मर्ज जिसमें मेरा साइज डबल होता जा रहा है। ऑक्सिलरी इंडेक्स का साइज 2 MB है, उसके बाहर वाले का 4 MB है, उसके बाहर वाले का 8 MB है। तो इस तरह से ऐसे हम मेन इंडेक्स तक लॉगरिथमिक मर्ज करते जा रहे हैं। इसका एल्गोरिथम भी बड़ा सिंपल सा रहेगा। अगेन आई एम सेइंग कि दिस इज डबल साइज लेके चल रहे हैं। हमारा जो सबसे अंदर वाला इंडेक्स है दैट इज कॉल्ड जेड नोट। सो जेड नोट का साइज हमें पता है, जेड नोट में हम एंट्री डालेंगे। अब अपन जेड नोट का देखेंगे कि क्या आई नोट, अब आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है। सो ये भी 0 है, तो हम देखेंगे क्या 0 पहले से है कि नहीं है। अगर तो वो पहले से नहीं है, फर्स्ट टाइम क्रिएट हो रहा है, यानी कि फर्स्ट टाइम जेड नोट से आई नोट में जा रहा है, सो दिस इज गोइंग फर्स्ट टाइम, तब एल्स चलेगा। फर्स्ट टाइम चल रहा है तो आई नोट में एंट्री क्या आ जाएगी, जेड नोट की। बट अगर सेकंड टाइम जा रहा है यानी कि पहले से है, सो दिस हैपन सेकंड टाइम, यानी कि पहले से है, तब जो भी जेड नोट में है वो तो आई नोट में जाएगा, बट अब आई नोट भर चुका है,
वो सारा का सारा Z1 में भी चल जाएगा। सो आई नोट एंड Z1 बिकम्स इक्वल, और आई नोट को अब हम इंडेक्स में से निकाल देंगे ताकि नेक्स्ट टाइम अगेन एल्स वाला चले, इंडेक्स में से निकाल देंगे ताकि नेक्स्ट टाइम फिर आई नोट शुरू से भरना स्टार्ट हो जाए। सो इन दिस वे, सो दिस एल्गोरिथम विल कीप ऑन मूविंग। आई नोट से क्रिएट होगा जेड नोट से क्रिएट होगा आई नोट एंड Z1 आर एक्चुअली द सेम थिंग। इनसे क्रिएट होगा I1 एंड Z2 आर द सेम थिंग। देन इनसे क्रिएट होगा I2 एंड Z3 आर द सेम थिंग। इन दिस वे लॉगरिथमिकली हम मर्ज करते जाएंगे और साइज हमारा बढ़ता जाएगा। अगर ये 2 MB है, ये 4, ये 8, 16, सो नंबर ऑफ मर्जेस हमारे जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा उतने नंबर ऑफ मर्जेस कम होते जाएंगे, उतना देर बाद मर्ज होगा। तो अभी तो 2-2 MB बाद मर्ज हो रहा था, फिर 4-4 MB बाद मर्ज होगा, फिर 8-8 MB, 16-16 MB, एंड वी नो दैट द पावर ऑफ 2। तो जैसे जैसे मर्ज होता जाएगा उतना लेट बड़े बड़े इंडेक्स में मर्ज होगा, छोटे इंडेक्सेस में मर्जिंग जल्दी होगी। ये क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। सो लॉगरिथमिक मर्ज में हमें एडवांटेज क्या है? जो इंडेक्स कंस्ट्रक्शन टाइम जो नॉर्मली क्या होता है, अगर हम एक बड़ा इंडेक्स रखते हैं और ऐसे अलग अलग से छोटे छोटे ऑक्सिलरी इंडेक्स रखते हैं, जैसे चंडीगढ़ का अलग से इंडेक्स है, लेट से दिल्ली का अलग से है, हर शहर का अलग से रखते हैं, तो इनको जब इकट्ठा मर्ज करते हैं, सो देन ऑब्वियसली इट वुड टेक ऑर्डर ऑफ डी स्क्वायर टाइम। बट लॉगरिथमिक मर्ज में क्या हो रहा है, एक छोटा इंडेक्स अपने से थोड़े बड़े में मर्ज हो रहा है, वो उससे थोड़े डबल बड़े से मर्ज हो रहा है, और इस तरह से मर्जिंग हमारी लॉगरिथमिक जा रही है। सो दिस वुड हैपन इन ऑर्डर ऑफ लॉग टी टाइम। और कितनी बार करना पड़ेगा? जितने हमारे इंडेक्स हैं, जैसे जितने भी छोटे छोटे इंडेक्स बनाए हैं उतनी बार हमें उतने स्टेप्स लेने पड़ेंगे। लॉग की बेस की वैल्यू क्या होगी? अगर हमने डबल करते हैं हर बार तो बेस वैल्यू 2 होगी, बट अगर हम ट्रिपल करते हैं, सो अगर हम 2 MB से 6 MB चले जाते हैं, 6 से 18 चले जाते हैं, 18 से 54 चले जाते हैं, तब बेस की वैल्यू 3 होगी। तो बेस की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि हम नेक्स्ट इंडेक्स उससे कितने टाइम्स पर है। सो लॉगरिथमिक मर्ज में हमारे नंबर ऑफ मर्जेस कम हो जाते हैं। सो लॉगरिथमिक मर्ज इज मोर एफिशिएंट एंड वी कैन कंट्रोल बेस्ड ऑन द कि कितने मर्जेस करने, दैट वी कैन कंट्रोल। बट नाउ हमारे नंबर ऑफ इंडेक्सेस, जो बीच वाले इंडेक्सेस हैं, ये बढ़ गए। पहले क्या था, सिर्फ ऑक्सिलरी इंडेक्स थे, जैसे चंडीगढ़, दिल्ली, हर शहर का इंडेक्स था और एक मेन इंडेक्स था। बट लॉगरिथमिक के कारण बीच में भी कई इंडेक्स अब आ गए हैं। सो नंबर ऑफ इंडेक्सेस बढ़ गए हैं। पहले अगर हमारे पास इन्फिनाइट कंप्यूटेशन होती तब ऑर्डर ऑफ व्हेन में कर पाते मर्ज, हम सारे इंडेक्स ऑर्डर ऑफ 1 में कर पाते, एक बार में मर्ज कर देते। बट अब हमें ऑर्डर ऑफ लॉग टी तो लगाना ही पड़ेगा। मेन इंडेक्स तक पहुंचने के लिए हमें ऑर्डर ऑफ लॉग टी टाइम तो लगाना ही पड़ेगा। सो वी नो डैट कि इन्फिनाइट ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स व्हाई ऑर्डर ऑफ 1 एक बार में मेन इंडेक्स में डालना, सो दैट इज नॉट एफिशिएंट एज कंपेयर टू द कि हम लॉगरिथमिक धीरे 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 अपडेट करें। सो दैट्स व्हाई लॉगरिथमिक इंडेक्सिंग इज प्रेफर्ड। अब लॉगरिथमिक इंडेक्सिंग से पहले होता क्या था, जब भी हम ऐसे मल्टीपल इंडेक्स बनाते हैं, सो कलेक्शन वाइज जो स्टैटिस्टिक्स हैं उनको एक तो मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। सपोज कोई भी इवेंट चंडीगढ़ में हो रहा है एंड समवन इन चाइना और जापान दे आर सर्चिंग, तो स्टैटिस्टिक्स मेंटेन नहीं कर पाएंगे भी कौन सी टर्म कितनी पॉपुलर हो रही है। ओनली रीजन वाइज हम पॉपुलैरिटी देखते हैं। सो व्हेन वी स्पोक ऑफ स्पेल करेक्शन व्हिच ऑफ द सेवरल करेक्टर अल्टरनेटिव, तो हम कौन सा पिक करेंगे जो रीजन वाइज मोस्ट पॉपुलर होगा। वी कैन नॉट डू इट कि मेन इंडेक्स में से स्पेल करेक्शन हो रही है। एंड हाउ डू वी मेंटेन द टॉप वंस विद द मल्टीपल इंडेक्सेस?
एंड इनवैलिडेशन क्योंकि कई चीजें डिलीट हो चुकी हैं, उनके बिट वेक्टर भी हैं। वन पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ मेन इंडेक्स के टाइम ही स्पेल करेक्शन करो, जब भी आपको स्पेलिंग करेक्शन करनी है, सो देन यूज द मेन इंडेक्स। बट वी नो डैट हर वक्त मेन इंडेक्स को सर्च करना इट इज टाइम कंज्यूमिंग, and many words have the relevance only in the region only। मे बी कोई एक टर्म है वो अभी चंडीगढ़ में पॉपुलर हो रही है, सो एंड दैट इज ओनली पॉपुलर इन चंडीगढ़। सपोज मे बी जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट सेंटर है एंड स्टू सी, सो दैट इज पॉपुलर मे बी इन द चंडीगढ़ ओनली, सो दैट नीड नॉट टू बी पुट इनटू द मेन इंडेक्स। सो इसलिए रीजन वाइज भी हमें स्टैटिस्टिक्स मेंटेन करने पड़ सकते हैं। Now, dynamic indexing at search engines, जितने भी large search engines हैं, so they do the dynamic indexing। अभी US election के टाइम पे you try to look at, अभी जैसे elections होंगे you will see that कि इनकी dynamic indexing काफी change होती है, so that is also politically inspired because and इनके में frequent incremental changes होते हैं, जैसे कुछ भी change होगा like now Trump whenever he comes out of hospital, so you will see that कि बड़ा dynamically changes होंगे web pages, news items। But for other news items which are not very popular, so they are periodically reconstruct index from the sketch। So query processing is then switched to a new index। जब भी scratch से करना है, so उस टाइम पे काफी कुछ हैपन होता है, जो रिजल्ट्स आपको दिख रहे होते हैं वो अचानक चेंज हो जाते हैं। सो दिस यूजली हैपेंड मैनी इयर्स बैक, जिसको हम गूगल डांस करते थे, गूगल डांस। अभी भी आप सर्च करना टर्म गूगल डांस। गूगल डांस के टाइम क्या होता था, जब भी मैं कुछ सर्च कर रहा होता था, मेरी कोई टर्म आती थी एंड इमीडिएटली दोबारा सर्च करते थे तो सारे के सारे रिजल्ट्स डिफरेंट हो जाते थे। सो नाउ व्हाई गूगल डांस किस टर्म को कहते हैं, क्योंकि उस टाइम मेन इंडेक्स अपडेट हो रहा होता था, सो गूगल रिकंस्ट्रक्ट इट्स मेन इंडेक्स। सो पहले तो गूगल ये हर साल करता था और हर साल गूगल डांस जिसको हम टर्म यूज करते थे, सो दिस हैपेंड। बट नाउ डेज यू माइट नॉट हैव सीन दीज थिंग्स, बट अभी भी अगर देखा जाए, सो दीज आर द स्टैटिस्टिक्स ऑफ 2018 और 19 में एक पर्टिकुलर टर्म के स्टैटिस्टिक्स हैं। सो इस टर्म की इंडेक्सिंग यू कैन सी दैट कि कैसे कैसे टाइम के साथ चेंज हो रही है। सो दिस शोज की भी सर्च इंजन में उसकी पोजीशन क्या है। अल्टीमेटली तो वो 30th पोजीशन पे आ गई आफ्टर मार्च, बट उससे पहले क्या हो रहा था, कभी वो 20th पोजीशन पे थी, कभी नीचे थी, कभी ऊपर थी। सो दिस वाज हैपनिंग, सो दिस वाज हैपनिंग फॉर ए पर्टिकुलर टर्म। नाउडेज गूगल ट्राई की पहली 10 टर्म में ऐसा कुछ ना दिखे, और many of you may not have gone beyond the first 10 results। काफी बार हम पहले 10 रिजल्ट्स के बियॉन्ड नहीं जाते, बट अगर आप देखोगे नीचे के रिजल्ट्स में काफी ऐसी वेरिएशन होती है। सो दिस हैपेंस बिकॉज इंडेक्सिंग रिकंस्ट्रक्शन होती रहती है। गूगल अब मेन इंडेक्स को रियरली रिकंस्ट्रक्ट करता है, सिर्फ अपडेट होता है, बट किसी टाइम पे ये काफी फ्रीक्वेंट होता था एंड देन द टर्म ऑफ गूगल डांस ये पॉपुलर टर्म थी। अभी भी आप गूगल पे सर्च करोगे यू विल गेट रिजल्ट्स बिकॉज कि गूगल डांस होता क्या है। बट नाउ डेज लास्ट 5-6 ईयर्स में पीपल हैव नॉट सीन कि बहुत ज्यादा वेरिएशन इन द फर्स्ट 10 रिजल्ट्स। सो पहले 10 रिजल्ट्स में इतनी ज्यादा बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आ जाती, बट अर्लियर दिस यूज्ड टू हैपन। Now we have seen that indexing जो करनी है, डायनामिक इंडेक्सिंग करनी है, पोजिशनल इंडेक्सिंग करनी है, बट these are not a single type of indexes। So इस लेक्चर में हमने पूरे यूनिट में हमने देखा है कि पोजीशन भी नोट करनी है टर्म्स की। सो डॉक्यूमेंट में टर्म आ रही है ये तो नोट करना ही करना है, बट उसकी पोजीशन भी चेंज करनी है। सपोज नाउ यू चेंज द पोजीशन, आप टेक्स्ट चेंज कर लेते हो तो पोजीशन इंडेक्स भी चेंज हो जाएगा। फिर सॉर्टिंग भी करके रखनी है। देन स्पेल करेक्शन के लिए आई टोल्ड यू कि n ग्राम के इंडेक्स बनेंगे। n ग्राम का भी एक इंडेक्स नहीं बनेगा, बाईग्राम का अलग बनेगा, ट्राईग्राम का अलग बनेगा। देन आई टोल्ड यू कि साउंड एक्स जिनकी साउंड सेम है उसके भी इंडेक्स बनेगा।
सो देर आर सो मेनी इंडेक्सिंग एंड सबकी पोस्टिंग एंट्री भी जनरेट होंगी। एंड सपोज ट्राइग्राम का इंडेक्स है जिसमें यू अकर कर रहा है, इट इज अकरिंग इन ए टर्म डेसिडुअस, तो इसका इंडेक्स भी अलग बनेगा। So there are so many indexings which will be created by Google and all these search engines. So एक इंडेक्स नहीं बन रहा, काफी इंडेक्स बन रहे। सेकेंड थिंग इज, जब रिजल्ट्स आएंगे, यू डू नॉट वांट रिजल्ट की एज सच आपको कलेक्शन मिल जाए, यू वांट रैंक्ड रिजल्ट। आपको रैंकिंग चाहिए उनकी कि सबसे बढ़िया रिजल्ट तो पहले नंबर पे होना चाहिए, जहाँ टॉप के रिजल्ट पहले 10 में होने चाहिए, तो इनकी रैंकिंग भी करनी है। सो इंडेक्स भी एक तो इतने सारे बन गए हैं और अब इनकी रैंकिंग भी करनी है। सो नाउ आवर फोकस फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वुड बी हाउ टू रैंक दीज थिंग्स, इनकी रैंकिंग करनी कैसे। सो यू हैव टू कीप इन माइंड देयर विल बी मैनी इंडेक्सेस व्हिच विल बी क्रिएटेड पोजीशन के बेस पे, फिर बाईग्राम, ट्राईग्राम, उनके साउंड एक्स, देयर विल बी उनकी पोस्टिंग एंट्रीज, काफी इंडेक्स बनेंगे और लोगरिथमिक हायरार्किकल इंडेक्स बनेंगे और ऑक्सिलरी इंडेक्स बनेंगे, फिर मेन इंडेक्स होगा। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच विल बी क्रिएटेड बाय सर्च इंजन एंड फाइनली विद दैट assumption कि भी इतने इंडेक्स बने हुए हैं, हमें उनकी रैंकिंग करनी है। अब जो भी रिजल्ट आएगा उसको रैंक करना है। So this is will be very interesting part of your course कि रैंकिंग कैसे करनी है। So यहाँ पे NLP अब इन्वॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये क्लियर है सबको?